माउस जायचं बोलतो. Very good afternoon to all my friends from media. Thank you for coming here. I hope you all are doing well and you all are taking care of your family and your loved ones as well. As you all know, आज हम सब यहाँ आए हैं एक अनोखी लव स्टोरी के प्रेस लॉन्च पर. स्पाई बहू एक ऐसी लव स्टोरी है एक यंग स्पाई और एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट योहान की. सेजल और योहान दोनों के हैं अलग अंदाज पर इनके दिल में छुपे हैं कई राज. देखते हैं कैसी होगी पूरी एक स्पाई की लव स्टोरी. तो ऐसी कहानी इतनी दिलचस्प कहानी है तो जानते हैं खुद योहान और सेजल से. सो मैं प्लीज कॉल योहान एंड सेजल ऑन स्टेज. द स्टेज इज ऑल योर्स. तो शुरुआत करते हैं योहान आपसे. अब योहान हम यहाँ आए हुए हैं तो मीडिया से रूबरू भी हो जाते हैं. तो मुझे एक बात बताओ, इन मीडिया वालों को देखकर तुम्हारे दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है? मीडिया. सरस स्मार्ट है लड़का. ठीक है चलो ये वन वर्ड गेम खेलते हैं. मैं एक वर्ड बोलूंगी आप उसका जवाब दो. ब्लू. दोस्ती नहीं होगी. स्काई. हैप्पीनेस. फूल. झूठ. यार. ऑडियो. अरे लाइट देखा ऐसा क्या है जो कश्मीर का नाम सुनते ही योहान के पास कोई जवाब ही नहीं. ये जानने के लिए देखते रहिए स्पाई बहू मंडे टू फ्राइडे 9 PM सिर्फ कलर्स पर. Alright, let me call more important people here. My most good-looking father I found on screen till now, Ayub Khan, and then Sejal's mother, Bhavna, and then the mother, Shubha Kote. Please. I'm really thankful to Ashwini that I get a chance to work with this day. Glory and honor. ये हमारी प्यारी माँ और मेरी मम्मी. मेरी घरवाली. Good afternoon, guys. Thank you for coming here. Thank you for being part of this lovely press conference that we're having. We're so proud to be here. Very excited to be over here. I'm here with my team and my very dear producer, Ashwini. We are here to answer your questions. Whatever you'd like to know, please fire away. We're at your service. You can call Ashwini, ma'am. Ashwini, Yes, please. I'm come so sorry. on. I'm so sorry. Because she would be better one to answer any questions which we might know. Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you. Is it fine? Do you hear? Hello, hello. Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm sorry for the delay, but thank you for being here. And for me, it's like a mixed emotional journey. For me, they say life is a full circle, and I feel I've come back to Colors, a channel that I was associated with since 2008. And so I can't say I'm really excited because I'm also very scared. And I'll be more scared next week when the ratings are out. But otherwise, I'm really happy and proud to be here with all such fine actors. And the story is a very unique one, probably something that you've not seen on Indian television. So you've seen all kinds of bahus, you've seen some of them I created. But this one is this very special, different bahu. She's also a part of the Indian intelligence. So it's a very different, it's a job that I feel like
It's very stereotypically a man's job. When you think of somebody in raw intelligence, you think of a man. So here's hoping we're breaking norms with Sejal Kotadia's job and as an undercover raw spy. So all the best to all of us, and I'm hoping you like it as much as we loved making it. So thank you. Absolutely. We're loving it all. Oh, this used to be my favorite line when I was in Colors. Can we have the AV, please? Now, I would request you to speak something about your characters and introduce yourself to our media friends, please. We'll start with. Okay, Johan is an ambiguous guy, very stoic. No matter how much the pain is he's carrying, you might not get to know unless until he's really open. Very reserved and lost most of the time. गायब रहता है, छुपा रहता है, and doesn't like his father at all. Of course, there are a lot of reasons we'll get to know, and that's the most difficult part, to be honest, to play, to hate a father, and especially when you have such a good-looking father and a charismatic father. So yeah, and then eventually he falls in love, and he's somewhere in the process of betrayal that he falls in love with a girl who's a spy and spying on him and his family. So that's about it. That's Johan, I think. Hello, केम छो? मैं हूँ सेजल सरस कोटाड़िया and I am from जामनगर and my father has a फरसान शॉप. अगर आप लोगों को कभी फरसान चाहिए तो do let me know. हमारे यहाँ का बहुत अच्छा फरसान मिलता है. Other than that, सेजल जो है बहुत ही young, chirpy और bubbly और बहुत ही गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप की लड़की है बाहर से, बट अंदर से वो उतनी फोकस्ड है, उतनी डेडिकेटेड है, अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है, स्पेशली अपने मम्मी पापा से, अंधेरे से बहुत डरती है, बात बात पे गिर जाती है, अपना चश्मा तोड़ देती है और जहाँ जाती है वहाँ पे रकस क्रिएट करती है. तो दिस इज़ अबाउट सेजल. फिर ऐसी लड़की जब स्पाई बनेगी तो वो कैसे स्पाई बनेगी, वो क्या स्पाई बनेगी, यही उसकी जर्नी है. एंड आई होप आप लोग हमारा शो देखें और उसे उतना ही प्यार दें जितना हम देते हैं. सो थैंक यू सो मच. ओके, मैं मीनल सरस कोटाड़िया, सेजल की मम्मा. Though I'm not her biological mother, our relationship transcends all relationships of mother-daughter relationships. I am forever concerned about my गिरती पड़ती सेजल. कभी क्या टूटेगा, कभी चश्मा टूटेगा, उसको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा. And I am extremely fond of her. और जितनी खुशी मेरे दिल में सेजल के मिलने की है, उतना ही डर उसे खोने का है. So that is what keeps me paranoid and I cling on to her. So that's Meenal Saras Kotadia for you. I don't need to tell you, I'm the दादी of the family. ऐसी दादी है, मतलब दिल से बहुत प्यार करती है सबको, लेकिन सारा दिन चिड़चिड़ी रहती. She doesn't like this girl at all. I have Lying. फेवरेट हूँ मैं. and that's it. दादी is a दादी. My character's name is Arun Nanda. I am a very successful businessman. I deal in arms. I have 4 children. I have 3 children from my first wife. I have 1 son from my second wife. Why this very handsome son of mine doesn't like this good-looking father, you will get to know in the show. It's a very interesting story. That part is very interesting, why he doesn't like me. But Arun Nanda is looking forward to letting his sons take over his business from him. And the one shining star that he finds in his amongst his children is the one who doesn't like him, doesn't like the father. And this is a bit of my character in Spy Boo. You guys really have to see the scenes because it's been a pleasure working with him, and you really have to see the scenes which we have been doing. Yes, we It's have. wonderful actually, and I think it's been a wonderful experience for me to work with him, and I'm really delightful.
Thank you, Ashwini. I am very grateful to Ashwini. This is the I'm grateful to Colors for having and trying out something different. So we're very grateful. I'm very grateful to Ashwini. I'm very grateful to Colors. This is my third venture with the channel. We had a long association with Uttaran before this. Yes. I got to work with Colors before this. I've done 2 shows. This is my third show with Colors. My second show with Ashwini. I mean, not in the way that as a producer. This is my first association with Ashwini as a producer. And it has been a it's a very cliched line to hear that we have had a great time at shoot, but literally the bonding has been amazing. I'm blessed to have such beautiful people to work with. A lovely producer like Ashwini, a fabulous channel like Colors, and I'm hoping that we will keep you entertained. We have had very bad times because of the pandemic. This light-hearted love story, come spy drama, hopefully will keep you engaged. So here's to Spy Bahu. I also actually want to take this time to also thank the government, and especially in Kashmir, because during the pandemic they went all out of their way to help us shoot some very difficult scenes, and we probably created some sort of a history by shooting in the market scene at Lal Chowk by the way we did. So we have CRPF to thank and the Indian government, and especially the Governor of Kashmir. So we are very thankful for all that we did and following the COVID protocol. So it's been a little tough but very interesting filming for us. फोटो हो जाए हाथ ऊपर मत अभी स्टार्ट हो स्टॉप कर हो गया उतने आगे इंटरव्यू स्टार्ट क्या स्टॉप कर टाइम कितना हो टाइम कितना हुआ अपना टाइम 34 हुआ ना 3.5 घंटे आगे पता नहीं अभी यहाँ से मेरे को फ्री करेगा कोई स्टॉप किया गया थोड़ा राइट थोड़ा गिरे नहीं है Once more. Once more. Nice. ये मेरे चांद का छोटा बेटा मेरे सरप्राइज गिरी नहीं Yes, sir.
स्टिल दादा अरे चाचा चुप हो सेवन में लेफ्ट में थोड़ा पार्टिसिपेट करो ना ये तो सीरियस लग रहा है कैंडिडेट थोड़ा बोल दिया इधर आओ इधर शिल्पा कहाँ बुला रहे हो जनता प्रोमो इज वेरी अमेजिंग क्या कुछ बताना चाहेंगे स्पाई बहू को लेकर थैंक यू सो मच प्रोमो जितना प्रॉमिसिंग लग रहा है हमारा शो उससे कई ज़्यादा प्रॉमिसिंग है देयर इज़ अ लॉट वी हैवंट एज इन रिवील येट बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाई नहीं गई हैं लेकिन देयर इज़ सो मच फैमिली बहुत बड़ी है दोनों की और दोनों फैमिलीज़ बहुत कुछ लेकर आती हैं ऑन स्क्रीन और बहुत कुछ ऐड करती हैं सेजल के लिए भी और योहान के लिए भी वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत बोलने लगा मुझे लगता है आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट दीस डेज हाँ मैंने इतनी ग्रैंड कास्ट और स्टोरी अभी तक नहीं करी है मेरे हिसाब से बहुत कुछ है इस शो में बहुत कुछ और निकलता चला जाएगा एक के बाद एक सिरा ये पीछे आप ग्राफ देख रहे हैं ना ऐसा स्टोरी का ही ग्राफ है सिर्फ योहान का ग्राफ नहीं है पूरी स्टोरी का ग्राफ ऐसा है और ये क्यूट सी लड़की जो इतनी क्लमजी सी है गिरती पड़ती रहती है जैसे अभी आपने देखा गिरते हुए इनको ये स्पाई बनेगी ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस कैरेक्टर के लिए भी और शो में बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि व्हेन आई वाज सीइंग हर डूइंग दोज सीन्स आई वाज एक्चुअली लाफिंग कि ये क्या स्पाई बनेगी रे तू तो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट बट देन शी बिकम्स दैट स्पाई शी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर द इंटेलिजेंस एंड देन वी फॉल इन लव एंड वहाँ से जो कहानी शुरू होती है चालू एक तो योहान वैसे इतना चुप कैरेक्टर है अलूफ है लोगों से नफरत करता है उसके बाद उसको और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी झूठ बोलने वालों से और अपेरेंटली ये झूठ वो एक लेके चल रही है जिससे वो प्यार करने वाला है अपन देश के लिए करना पड़ता है ना कभी कभी सो बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा शो है स्पाई बहू इट्स नॉट जस्ट प्रॉमिसिंग एंटरटेनमेंट बट इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें लव है इसमें एक्शन है इसमें ड्रामा है इसमें सस्पेंस है इसमें थ्रिलर है इसमें इमोशंस है इसमें रोना धोना है इसमें नाच गाना है देयर इज़ नथिंग दैट वी मिस्ड आउट ऑन एंड इट इज़ सो परफेक्टली बैलेंस्ड कि आप हंसते हंसते कब रो दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा सो आई डोंट थिंक कोई रोमांस थ्रिलर कोई कर रहा है इस टाइम सो दिस माइट बी समथिंग न्यू फॉर द ऑडियंस फॉर मी दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी एज सहबान द कैरेक्टर आई थिंक probably it will be easy for me to perform and for her it will be very difficult because she's not at all what she is portraying but I have somehow become like Sejal only मैं ऑफ स्क्रीन भी बहुत अभी बहुत गिरी मेरी आदत हो गई मैंने प्रैक्टिस कर लिया है कि गिरना कैसे है कि नीचे की चीज़ें देखनी नहीं है आई एम सो सॉरी नीचे की चीज़ें देखनी नहीं है सिर्फ सीधा चलना है तो मैं एक्चुअली अब गिरती पड़ती रहती हूँ ठीक है इट कम्स विद टाइम बट फिर I'll also tell you what happens when I look at her शुरू हो गई है हिचकियाँ बहुत आती है ऐसे नर्वस हो जाती है योहान के अराउंड तो इतनी क्लमजी है इतनी गड़बड़ करती है और इतनी फ़नी है तो ये कैसे स्पाई बनेगी और एक ये भी बात है कि हम इंडियन टेलीविज़न में स्पाई ड्रामा कभी हुआ नहीं है एंड कंसिडरिंग एक रॉ एजेंट या हम स्पाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक जेम्स बॉन्ड या फिर ऐसा कोई लाइक अ हैंडसम बॉर्न अल्टीमेट यू नो गाय ऐसे आता है दिमाग में बट यही ट्विस्ट है इस शो का कि ऐसी लड़की इतनी फ़नी इतनी क्लमजी इतनी नाइफ येट सो रेजिलिएंट वो स्पाई कैसे बनेगी तो ये उसकी पूरी जर्नी एंड आई होप यू ऑल एंजॉय इट और उस पे सोने पे सुहागा उस स्पाई को प्यार भी हो जाएगा और सोचिए फिल्मों में आजकल ये देखने में आया है एक ट्रेंड की तरह से बहुत सारे देश की बात होती है बहुत सारे देशभक्ति उससे रिलेटेड क्या वो इम्पैक्ट धीरे धीरे टेलीविजन पर पड़ रहा है और शायद शुरुआत श्री गणेश आपसे हो गया हो टेलीविजन में शुरू से है आई थिंक द होल आइडिया ऑफ यू नो
देशभक्ति देश प्रेम शुरू से है। पेट्रियोटिज्म हमेशा से रहा है, हमारा ये कल्चर ही है। आई थिंक इंडियंस हम होते हैं बहुत पेट्रियोटिक, इमोशनल है हम लोग, आई थिंक, और देश को लेके और भी ज़्यादा इमोशनल है। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का जब कोई मैच होता है तो आपको दिखता है, या इंडिया का किसी से भी मैच होता है तो आपको दिखता है हाउ patriotic we are and how jazbati we are when it comes to India. East or West, India is the best. शादी के बाद कितनी लाइफ चेंज हो गई है? लाइफ चेंज हो गई मतलब, हाँ अब शादी हो गई, अब घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है यू गोइंग होम और खाना पी के मम्मी को हाय बाय बोल के सो जाओ, बट काफ़ी बातें करनी होती है, डेट डिस्कस करना होता है, थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बट माई वर्क स्टार्टेड एंड नाउ आफ्टर मैरिज दिस इज़ माई फर्स्ट शो, सो आई एम रियली बैलेंसिंग इट। आई एम स्टिल अभी हम सेट पे बर्तन धुलवाते हैं उधर जाके या बिकॉज हम 14-15 घंटे की शिफ्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग में निकल जाती हूँ, फिर रात में हम कल तो सफाई करना भूल गई थी। जब ये प्रोजेक्ट का ऑफर आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई वाज स्टन्ड। मुझे ये मैंने बहुत तपस्या की है इस बात के लिए। मैंने अपनी आई थिंक मेरे जितने भी करीबी दोस्त हैं इंडस्ट्री के जिन्होंने मेरे साथ काम किया, ऑल माई को एक्टर्स, आई ऑलवेज टोल्ड देम, मैं थक गई हूँ रो के, मेरे को नहीं रोना है मेरे पति के लिए, वो गया तो गया, मुझे अब कुछ और करना है। सो दे वुड ऑलवेज से व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, तो क्या उम्मीद करती है। एंड फाइनली आई टोल्ड देम दैट आई वांट टू प्ले अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लाइक कोई रॉ एजेंट ही मिल जाए। मैंने इतना मैनिफेस्ट किया है इसे कि ऊपर वाले ने अब मुझे ये शो दे दिया। थैंक्स टू अश्विनी एंड थैंक्स टू कलर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड हैविंग फेथ इन मी कि मैं सेजल का कैरेक्टर निभा पाऊँ। बट ऑल माई ब्रिलियंट को एक्टर्स मेक माई लाइफ वेरी ईजी। नहीं? ओह या मी। मेरा पहला रिएक्शन आई थिंक इट्स मैनिफेस्टेड। मैं कश्मीर में था उससे पहले कुछ 2 महीना के लिए, और मैं कश्मीर में बोल के आया था कि ऊपर वाले जल्दी से वापस मुझे कश्मीर भेज दे, मैं वापस आता हूँ। मेरी पहली मीटिंग होती है अश्विनी मैम के साथ, तो वो मुझे स्टोरी नरेट करती है। मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज आई बीन ऑल दीज ईयर्स प्लेइंग अ वेरी गुड गाय, ऑलवेज सहने वाला अपनी बीवी के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ करने वाला। ये कैरेक्टर डिफरेंट था क्योंकि ये कैरेक्टर इज़ समवन हु डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एट ऑल, Also then I manifested कि मैं कश्मीर वापस आऊँगा, and then first thing she said, Saibaan, we'll start shooting from Kashmir. I was like, चलो look test करते हैं जल्दी से, let's do it, and thankfully it happened, and I'm glad it happened. I'm so glad. Normal love stories होती है love at first sight, हमारी है annoyed at first sight, hate at first sight, देखते ही चिढ़ आ गई। हरकतें भी ऐसी हैं। कौन है ये लड़की, कौन है ये वाड़ा? So lastly जाते जाते फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने शो के बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि स्पाई बहू जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सेजल का कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है, योहान का कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल। आई एम श्योर योहान पे तो सब मरने वाले हैं, ऑल द गर्ल्स आर गोइंग टू गो गागा अबाउट योहान। बट ये शो में हंसी है, इस शो में इमोशंस है, इस शो में प्यार है, इस शो में सब कुछ है। एंड हमने बहुत मेहनत से ये शो बनाया, बहुत सारा प्यार और अपना दिल डाला है शो में, एंड आई होप यू ऑल रिलेट टू इट। It's not normal, it's not usual. This show is very different in terms of everything I've worked before. So फैंस से सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जिस तरह से प्यार करते आए हैं, प्लीज़ प्यार करते रहें, और सेजल और योहान को देखें, एंड यू माइट फॉल इन लव विद बोथ ऑफ देम, फॉलिंग इन लव विद ईच अदर। इट्स वेरी रिलेटेबल। होता क्या है ना कि यूजुअली हर लड़का एक लड़की देखता है तो उसको बहुत मॉडल टाइप लड़कियां दिखती हैं, लेकिन प्यार उसको उसी लड़की से होता है जो उसको लगता है कि ये घर के लिए परफेक्ट होगी, सो दैट्स हाउ सेजल्स गोना बी। लेकिन इसे पता नहीं है मैं इसके और इसके घर के साथ करने क्या वाली। येड़ी है ये। क्या स्पाई बनेगी रे तू? अरे क्या टेररिस्ट बनेगा तू? थैंक यू सो मच। मैम फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूँगी, प्रोमो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। क्या कुछ बताना चाहेंगी आप स्पाई बहू के बारे में? ये बहुत ही अलग एक कहानी है। हमेशा लोग कहते हैं हटके है, तो मैं वो क्लीशेड वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन ये जैसे आपने देखा बहुत अलग कहानी है। क्योंकि जैसे आप स्पाई का नाम लेते हैं हमेशा एडवेंचरस और टेररिज्म, थ्रिलिंग सोचते हैं, तो ऐसा नज़रिया, एक ऐसे नज़रिए से स्पाई को देखना जिसकी लव स्टोरी हो, वो एक अलग
कहानी है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक स्पाई होते हुए वो अपने ही शौहर पे मतलब स्पाई करेगी और क्या होगा उसकी लव स्टोरी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंडियन टेलीविज़न पे ये पहली बार इस तरीके की स्टोरी दिखाई जाएगी। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ऑडियंस से, किस तरह से आप मतलब देखना चाहेंगी आप? आई होप कि लोग इसे पसंद करें क्योंकि ये अलग है। अगर आप सोचें कि आजकल सिर्फ सास बहू के ड्रामे चलते हैं या जो परिवार के जो रिश्ते होते हैं और उनमें जो नोक झोंक होती है, आई थिंक ऑडियंस अब वो देख देख के थक गई या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ अलग ज़रूर चाहेगी। जैसे आप हर रोज़ खाने में वो ही तो नहीं खा सकते दाल चावल, कभी कभी आपको कुछ चटपटा अलग सा चाहिए होता है। तो उसी तरीके से ये अलग कहानी है, तो आई होप औडियंस इसे एक्सेप्ट करे और पसंद करे। मैम अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, किस तरह से आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को अपने कैरेक्टर? तो ये एक बे औलाद माँ है जो मतलब बहुत सालों से औलाद की के इंतज़ार में है और उसे ये मिल जाती है एक छोटी सी बच्ची अनाथ आश्रम से, और हमें कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से आई है और हम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि जिस वक्त से हमने उस बच्ची को देखा है हमको लगता है ये है हमारी सेजल सरस कोटाड़िया। तो ऐसे, और क्योंकि वो मेरी अपनी जन्मी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ, बहुत उस पर अपना जान न्यौछावर करती हूँ और मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि सेजल का होगा क्या, क्योंकि वो गिरती पड़ती रहती है, काफ़ी उधम मचाती रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में सेटल हो जाए लेकिन मेरे पास रहे। तो मैं उसकी शादी भी कराना चाहती हूँ तो अपने मोहल्ले के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं सेजल को खो दूँ कहीं पे। मैं वो दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती उससे दूर रहने का। तो ये एक पॉजेसिव माँ है, वेरी इमोशनल है लेकिन बहुत फ़नी भी है क्योंकि मेरे और मेरे पति के बीच में नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन सेजल हमारी ज़िंदगी का फोकल पॉइंट है। अगर स्पाई बहू के बारे में बात की जाए, क्या कुछ आप यूएसपी पॉइंट बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि हाँ इसलिए आपको देखनी चाहिए ये शो? क्योंकि स्पाई बहू में ऐसा है कि टेररिज्म एक बैकग्राउंड रखा गया है, लेकिन ये कहानी टेररिज्म पे नहीं है और ना ही ये किसी सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन क्योंकि एक वैसा कश्मीर का बैकग्राउंड है, टेररिज्म का बैकग्राउंड है और टेररिज्म आज की हकीकत है, हम उसे नकार नहीं सकते, तो इसीलिए ऑडियंस इसे पसंद करेगी क्योंकि जो हमारी असली ज़िंदगी में हो रहा है उसकी एक छोटी सी झलक मिलेगी, लेकिन एक एंटरटेनिंग तौर पे। और लास्टली क्या कुछ जाते जाते बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? बस हमारा शो देखिए, पसंद कीजिए। स्पाई बहू 14 मार्च से आ रहा है कलर्स टीवी पर 9 बजे, देखिएगा ज़रूर और प्लीज़ पसंद कीजिएगा। अभी तक का शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा ये? बहुत बढ़िया, क्योंकि हम कश्मीर गए थे, हम कुछ लोग गए थे और वहाँ पर मतलब जैसे कहते हैं जन्नत है, तो आप जहाँ देखेंगे तो नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। हालांकि अब ठंड के मारे सारे पेड़ सूख चुके थे, फूल मुरझाए थे, लेकिन कश्मीर है, बहुत खूबसूरत। तो वो भी एक यूएसपी है क्योंकि इंडियन टेलीविज़न पे बहुत कम शोज़ हैं जो कश्मीर में शूट किए और वहाँ पे हमने कुछ ऐसे काफ़ी धमाकेदार सीन्स किए जो काफ़ी मुश्किल थे वहाँ शूट करने। तो ऑडियंस को देख के मज़ा आएगा क्योंकि कुछ बॉम्ब ब्लास्ट और सब कुछ वहाँ पे कश्मीर में हमने दिखाया। सो आई एम श्योर दे विल एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू। रोली मैम, स्पाई बहू बहुत ही अलग ही प्रोमो दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इट इज़ अलग, जैसे प्रोमो देखा वैसे अलग काइंड ऑफ अ सीरियल। उसमें रोमांस भी है, स्पाइंग भी है, एंड ब्रिंगिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर इन वन सीरियल इज अ वर्क ऑफ आर्ट। सो जब आपको ये ऑफर किया गया है कि स्पाई बहू में आपको काम करना है, किस तरह का आपका फर्स्ट रिएक्शन था? क्या कुछ पहले तो मैंने स्टोरी आउटलाइन सुनी तो उसी पे मैं इम्प्रेस हो गई है, देन उसमें आई एम डूइंग अ रोल बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ हिट सीरियल एंड बीइंग पार्ट ऑफ अ हिट सीरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैम जानना चाहूँगी कि जो आप कैरेक्टर निभा रही है उसके बारे में ऑडियंस को क्या कुछ बताना चाहेंगे? वैसे मेरा रोल है चिड़चिड़ा, लाइक आई कीप कंप्लेनिंग, लाइक टिपिकल पुराने बुढ़ी औरतें जैसे होती है, बट आई एम वेरी काइंड एट हार्ट। वो टिपिकल जो डबल प्ले है, बाहर से स्ट्रिक्ट दिखाना लेकिन यू लव योर चिल्ड्रन, यू लव योर ग्रैंड चिल्ड्रन, दैट इज़ द काइंड ऑफ रोल आई हैव एंड आई थिंक ऑल दादीज शुड बी लाइक दैट। सो कितना रिलेट कर पाती है ये जो कैरेक्टर आप निभा रही है, क्या बताना चाहेंगे? मैं अपने नेचर से नहीं रिलेट कर सकती क्योंकि मैं चिड़चिड़ी बिल्कुल नहीं हूँ। आई लाइक पीपल, आई एन्जॉय
my children, my grandchildren. I've even got a great grandson now. सो मैम जानना चाहूँगी जिस तरह से आप कैरेक्टर निभा रही हैं, ये शूटिंग के बारे में अगर बात की जाए, किस तरह से अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है? हम लोग मतलब ऑल द आर्टिस्ट आर सो नाइस, सो काइंड एंड फ्रेंडली. अभी शूटिंग में अगर लाइटिंग हो रही हो, वी ऑल सिट टुगेदर एंड चैट एंड वी एंजॉय आवरसेल्व्स. कितना एंजॉय करती है? कोई जोक करेगा या कोई किसी का मजाक करेगा, लाइक एंड वी एंजॉय, वी लाफ एंड जॉइन. ओके, अगर ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात की जाए, सबसे ज़्यादा किससे आपको अटैचमेंट बनी है अभी तक आपकी? किस में? इसमें मेनली माई डॉटर ऑफ कोर्स. और फिर बाकी जो भी मेरे साथ है, लाइक संजीव जोटांगिया एंड दैट लिटिल बम्बा इज सो स्वीट, जो ग्रैंडसन प्ले कर रहा है, इज़ वेरी स्वीट. दिस गर्ल इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, सना, एंड शी इज़ वेरी स्वीट. नेचर बहुत अच्छा है. आई डोंट नो व्हाई एवरी टाइम शी कम्स मीट्स मी फर्स्ट टाइम मेरे पैर छूती है. शी इज़ वेरी स्वीट एंड अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. देखा ना, यू सॉ द, शी इज़ वेरी गुड. शूटिंग हुई है कश्मीर में, वहाँ पे किस तरह से मस्तियाँ की या फिर किस तरह से माहौल रहता था, क्या कुछ बताना? कहाँ? कश्मीर तो मैं नहीं गई. आई डिडंट गो, ओनली द यंगर. ओके, सो आप कितना मिस की वहाँ पे नहीं जा पाए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, सबने मुझे बताया एंड मे बी इट इज़ ट्रू दैट इट वाज वेरी वेरी कोल्ड एंड दे फेल्ट आई माइट नॉट बी एबल टू टॉलरेट द कोल्ड. ओके, मतलब बहुत सारे आपने किरदार निभाया है, बहुत सारे अलग अलग रोल में आप नज़र आई हैं, तो क्या कुछ इस रोल में आपको अलग लगा कि हाँ ये रोल करना है, क्योंकि ये इससे डिफरेंट? हाँ, क्योंकि इट इज़ डिफरेंट. एज आई सेड कि देयर आर टू शेड्स. शी इज एंग्री, शी चिड़चिड़ करती है, डांटती है, बट शी इज़ अ काइंड दादी. सो इट वाज अ चैलेंज टू डू समथिंग चिड़चिड़ा एंड देन बीइंग नाइस एंड काइंड कि ले बेटा खा ले, पी ले. वो भी करती है, बच्चे को खाना खाने को देती है, इसको बाहर से कई काम से आती है, उसको शरबत देती है हाथ में. दैट पार्ट इज ऑल्सो देयर इन द सेम कैरेक्टर. अभी तक का जितना शूटिंग हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बेस्ट पार्ट क्या कुछ रहा है अभी तक आपका? Best part is where she goes to spy, she goes to Delhi, she goes to spy on these people, and we don't know why she is doing it, but she has some knowledge of her past, of what has happened, and that is why she is a different girl, and we don't know what is wrong with her. Okay, and lastly, what do you want to say to your audience? Watch Spy Bahu every day at 9 o'clock on Colors. Thank you. So सर, स्पाई बहू आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट लग रहा है और प्रोमो से बहुत ही ज़्यादा एक उत्सुकता हो रही है कि हाँ इसे देखा जाएगा. बहुत प्रॉमिसिंग प्रोमो भी लग रही है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया. जी हाँ, ये बहुत डिफरेंट किस्म का शो है. इससे पहले स्पाई ड्रामा डेली शो के फॉर्मेट में नहीं आया ऑन टेलीविज़न, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर अटेम्प्टिंग समथिंग लाइक दिस. मैं कलर्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अश्विनी का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, अश्विनी यार्दे, कि उन्होंने मुझे एक बार फिर एक मौका दिया है. इससे पहले उन्होंने उतरन में मौका दिया, उन्होंने शक्ति में मौका दिया. इस बार हमें कुछ नया अटैम्प्ट करने जा रहे हैं जॉनर में, जो एक स्पाई थ्रिलर किस्म का एक कहानी है, और ये बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है उससे हटकर है. उम्मीद करते हैं कि जितने भी ऑडियंसेस हैं जो थ्रिलर पसंद करते हैं उनको ये शो पसंद आएगा. लेकिन ये सिर्फ थ्रिलर ही नहीं है, ये इसमें कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, सब कुछ है. तो होपफुली वी विल बी केटरिंग टू ऑल द ऑडियंसेस. कॉन्सेप्ट तो हटकर है, पर आपके रोल के बारे में जानना चाहूँगी. अभी तक आपने बहुत सारे रोल बहुत बखूबी निभाया है. बहुत बहुत शुक्रिया. रोल के बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, ये जब कहानी बनती है तो गिने चुने किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं. एक बाप होता है, एक माँ होती है, बेटा बेटी, भाई बहन, एक नेगेटिव कैरेक्टर. तो आप उसमें तो हमेशा बंधे हुए रहते हो. तो हमारे जो राइटर्स होते हैं, हमारे जो क्रिएटिव्स होते हैं, हमारे जो डायरेक्टर होते हैं, वो एक कैरेक्टर को बनाते हैं. वो एक कैरेक्टर को सोचते हैं कि ये कैरेक्टर कैसे होगा और इसके क्या नुआंसेस होंगे, इसके क्या तौर तरीके होंगे. तो जो बल्क ऑफ द हैवी वेट लिफ्टिंग जो होता है
वो हमारे क्रिएटर्स, हमारे डायरेक्टर, हमारे स्टोरी राइटर, हमारे डायलॉग राइटर्स वो हमें हमारे लिए पहले बना के ले आते हैं और उसमें से हमको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है। जहाँ तक इस कैरेक्टर को लेकर मैं अगर बात कहूँ, अरुण नंदा, ज़्यादातर आप जब कैरेक्टर्स देखते हैं तो या तो डार्क होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं, या तो ग्रे होते हैं. This character has to be loving also, this character has to be dynamic also, this character has to be who you doubt also. तो बहुत सारे इसमें शेड्स हैं जिसको लेकर हम चल रहे हैं और that is making it very interesting because how to play each aspect and how to balance it out is a challenge that the creators, the director and the story writer and the dialogue writers are doing a superb job of. How was your experience अभी तक till now? Horrible, terrible. No, it was absolutely fabulous. As cliched as this may sound, the bonding was beautiful. The people that I'm working with, like-minded people, so immediate connect हो गया हम सबका. And the good part is that everybody is very respectful of one another, and that is such an amazing feeling, you know, to achieve in your career when people come to you with respect and talk to you with love and affection. I feel very blessed about it. So I'm enjoying every moment of my time spent on the show. कैरेक्टर या फिर इस टीवी शो का एक यूएसपी पॉइंट बताना होगा जो आप ऑडियंस को बताना. सबसे पहले क्योंकि कलर्स का शो है, बहुत यूनिक होगा. अश्विनी ने इसके बारे में सोचा है तो कुछ अलग ही सोचा होगा, और उसके बाद हम जो एक्टर्स हैं बड़े कमाल के एक्टर्स. जो मेन लीड में है उनके साथ किस तरह से बॉन्डिंग शेयर करना. सना को तो मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ. बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत हंसमुख, बहुत लविंग, बहुत रिस्पेक्टफुल. बड़ा अच्छा लगा उसके साथ. सब हमारे जितने भी एक्टर्स हैं बहुत अच्छा लगा. बहुत ही लाइट माहौल रहता है सेट पर, एंड इट्स वेरी फन, इंटरैक्टिव. इट्स नाइस, इट्स लवली, वेरी प्रोफेशनल पीपल. एंड लास्टली ऑडियंस से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही कि 14 तारीख को मैं यही कहना चाहता हूँ कि 14 मार्च 9:30 बजे कलर्स पे हमारा शो आ रहा है, स्पाई बहू. ज़रूर देखिएगा.